Good morning, students. Today we are going to start our fourth lesson, that is measurement of matter. In this lesson, we have to cover some laws of chemical combination and molecular mass and concept of mole. Now, students, we have studied that matter has three states: solid, liquid, and gas. In previous standard, we have also learned that compound are formed by chemical combination of elements. Okay. Now, example: calcium carbonate. This compound is formed by chemical combination of three elements, that is calcium, carbon and oxygen. Okay, we have also learned that an important principle of Dalton's atomic theory, that is molecule of compound are formed by joining atoms of different elements to each other. Okay, now in this lesson we are going to study some laws of chemical combination. Now students, the composition of substance changes during a chemical change. Okay, it remains as it is in physical change, but it get changes within a chemical change. Now the fundamental experiments in this regard were performed by some scientists. Okay, and they discover the laws of chemical combination. Now here some activities are given to you. In first activity, you have to take 56 gram of calcium oxide in a large conical flask and put 18 gram of water in it. Okay. Now 56 plus 18 becomes 74 gram. ठीक है, तो ये reactant है. Now after adding water to calcium oxide, measure the mass of substance formed. मतलब जो product यहाँ पे बन रहा है तो उसका mass जो है वो measure करना है. तो ऑब्वियसली इट विल बी 74 ग्राम. ठीक है, वो 74 ग्राम ही रहेगा. नाउ सी एक्टिविटी सेकेंड 4.1. You have to take a solution of calcium chloride in a conical flask and solution of sodium sulfate in a test tube. Okay. Now here tilt the conical flask so that the solution in the test tube gets poured in the conical flask. Now after that the reaction takes place between calcium chloride and sodium sulfate. Okay. Now students, observe the weight before, okay, and measure the weight after the reaction. So here we can see that the weight of chemicals before the reaction is 300.23 gram. Okay, and after the reaction takes place, the solution becomes colorless here. Okay, and weight is same here. Now what it indicates? It indicates that there is no rise or drop in the mass of the matter during a chemical reaction. Okay, in a chemical reaction the total mass of reactants is same as the total mass of the product formed due to the chemical reaction, and this is called laws of conservation of matter. ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अंदर हमें ये समझ में आता है कि जो रिएक्टेंट्स का ओरिजिनल मास होता है आफ्टर रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उस प्रोडक्ट का मास जो होता है वो एग्जैक्टली रिएक्टेंट के मास के इक्वल होता है. ठीक है, वो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. ठीक है, नाउ ये लॉ सीख लिया. सेकेंड लॉ इज दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट आर गिवन. सो ये स्टेटमेंट आपको
याद रखनी है, ठीक है। द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैम्पल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। एग्जाम्पल लेंगे, द प्रोपोर्शन ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स इज 1:8, ठीक है। दिस मीन्स यहाँ पर 9 ग्राम टोटल वाटर इज जो होता है वो फॉर्म होता है बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन का और 8 ग्राम होता है ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी सोर्स से अगर आप वाटर कलेक्ट करोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि 1:8 उसका प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैम्पल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होता है कंपाउंड्स के अंदर तो वो फिक्स होता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है। नाउ अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, यू कैन रेफर इट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है वो एटम्स, ठीक है। एटम्स का साइज, मास और वैलेंसी। नाउ व्हाट इज़ एटम? आपको पता है कि एटम आर वेरी टाइनी, ठीक है। वी कांट सी इट फ्रॉम आवर नेकेड आइज। नाउ ये जो छोटा सा एटम होता है उसका साइज मतलब क्या होता है? तो साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस, ठीक है। जो रेडियस होती है तो उससे हमको समझ में आता है कि एटम की साइज़ कैसी है, ठीक है। नाउ जो रेडियस होती है उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। नाउ व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ओके। नाउ ये होता है एटम का सेंटर एंड दीज आर द ऑर्बिट्स, ओके। Suppose this is last shell and this is nucleus. So ये जो डिस्टेंस होता है इसे बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, और इस एटॉमिक रेडियस के ऊपर एटम का साइज डिपेंड होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है उसके लिए यूनिट है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है। नाउ यहाँ पे सम एग्जांपल्स आर गिवन टू यू। कुछ एग्जांपल्स, हाइड्रोजन एटम, वाटर मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो इनके जो एटॉमिक रेडियस है मीटर्स के अंदर यहाँ पे चार्ट के अंदर आपको दिए, ठीक है। नाउ एटॉमिक साइज जो होती है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन द एटम। नाउ जितने ऑर्बिट्स है तो उन ऑर्बिट्स के ऊपर साइज़ डिपेंड होती है। अगर ज़्यादा ऑर्बिट्स है तो साइज़ ग्रेटर होगी, ठीक है, साइज़ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि द ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट लार्जर द साइज, ठीक है। एग्जांपल पोटेशियम का और सोडियम के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो पोटेशियम इज़ बिगर, ठीक है, देन दैट ऑफ सोडियम, बिकॉज यहाँ पर पोटेशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2881 और सोडियम का जो है 281, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 2 3 4 देयर आर 4 ऑर्बिट्स, ओके। और यहाँ पर 1 2 3 ओनली 3 ऑर्बिट्स आर देयर। सो ऑर्बिट्स कम है इसलिए इसका साइज भी क्या है, कम है, ओके। पोटेशियम के ऑर्बिट्स ज़्यादा है तो पोटेशियम की साइज भी क्या है, ज़्यादा बड़ी, ओके। नाउ इफ़ टू एटम हैव द सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों भी एटम्स के जो आउटर मोस्ट जो शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स वो अगर इक्वल है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे?
then the atom having the larger number of electrons in outermost orbit is smaller, okay, than the one having fewer electrons in the same outermost orbit. नाउ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम और सोडियम का, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 12 है और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो 11 क्या है, कम है, और 12 क्या है, ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम जो है वो स्मॉल होगा क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सोडियम, ओके। तो इस तरीके से वी कैन डिसाइड द एटॉमिक साइज, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द मास ऑफ एन एटम। तो एटम का मास क्या होता है एग्जैक्टली? द मास ऑफ एन एटम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर उसका जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एंड इट इज़ ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, ओके। और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्ज लेस होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के सेंटर में होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और वहाँ पे एटम का सारा मास जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर कॉल्ड एज ए न्यूक्लियंस। प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स दोनों को हम टुगेदरली क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियंस, ठीक है। या तो फिर हम बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ एन एटम इज़ वेरी टाइनी, बहुत छोटा होता है। देन हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स मास? तो उसका मास किस तरीके से डिटरमाइन किया जाए? तो साइंटिस्ट टू फेस दिस क्वेश्चन, साइंटिस्ट को भी ये प्रॉब्लम था। नाउ इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में ये पॉसिबल नहीं था। देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम वाज पुट फॉर, ठीक है। तो रिलेटिव मास का जो कंसेप्ट था वो उस वक्त उन्होंने कंसिडर किया। तो उसके लिए हाइड्रोजन, उसके बाद में कार्बन, तो ये जो एलिमेंट्स थे तो उनको रेफरेंस एटम उन्होंने कंसिडर किया था, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट, हियर ऑन पेज नंबर 49 यहाँ पे एक चार्ट दिया है, तो कुछ एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक मास यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ अदर्स ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब उस वक्त जो रेफरेंस एटम था तो उसके हिसाब से यहाँ पे मास कैलकुलेट करना था। बट टुडे वी हैव हाईली एक्यूरेट मेथड्स फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली, ठीक है। Hence, instead of relative mass, the united mass has now been accepted as the unit of atomic mass, ठीक है। It is called as a Dalton। उसका सिंबल U है और यहाँ पर 1 U का वैल्यू आपको दिया है, ठीक है। नाउ अभी रिसेंटली वी कैन मेजर द मास ऑफ एटम डायरेक्टली, ठीक है, और उसको हम डाल्टन बोलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन को आ सकता है, ठीक है। नाउ केमिकल सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट, नेक्स्ट वन इज केमिकल सिम्बॉल्स। तो सिम्बॉल्स किसे बोला जाता है? हाइड्रोजन का सिम्बॉल होता है H, ठीक है। कार्बन का सिम्बॉल होता है C। नाउ द करंट मेथड of choosing the chemical symbol is based on the method invented by Berzelius. According to this method, the symbol of an element is either the first letter, ठीक है, और the first and second another specific letter in its name, ठीक है। एग्जाम्पल कैल्शियम का अगर लिया जाए तो Ca, ये कैल्शियम का सिंबल है, ठीक है। कैपिटल फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल और सेकंड जो है वो स्मॉल लेटर। तो इस तरीके से कैल्शियम का सिंबल जो है वो लिख सकते हैं, ओके।
नाउ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। नाउ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, तो देखिए, टू और मोर एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन कंबाइंड देन इट फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, सपोज two oxygen atoms combine to each other, then it forms O2 molecule. ओके, तो यहाँ पे जो O2 बन रहा है मॉलिक्यूल, तो वी कैन से दैट इट इज़ डायटोमिक। ठीक है, डायटोमिक है क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स जो है एक दूसरे से कंबाइन होकर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, now when atoms of different element combine with each other, the molecule of compound are formed. तो एग्जाम्पल है H2O। ठीक है, एग्जाम्पल H2O का है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इट गिव्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ओके, इट गिव्स H2O। तो इस तरीके से टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओके, टुगेदर, मतलब इनका अगर कॉम्बिनेशन हो जाए केमिकल तो हमको वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड आई थिंक समझ में आ गया। इन अदर वर्ड्स कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये बात आपको समझनी है कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो कंपाउंड्स बनते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर, जब भी केमिकल अट्रैक्शन होता है तभी जाकर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, नाउ मॉलिक्यूलर मास and the concept of mole. We'll study it in our next lecture of science. Okay, till then, thank you. Goodbye. Take care.